Jai Hind to all of you, my dear students. Once again, I Bipin sir of Sri Ram Public School welcome you all to the online class of English Literature. My dear student, this classes, as you know, is running by Sri Ram Public School Basti. So today, in online classes, I am here with chapter number third, and the name of the chapter is Gopal and the Hilsa Feast. So before we read this chapter, we should understand some of the certain main points, main names, what it is being told. Gopal, as we know, it is a name of a person, but what is Hilsa? Hilsa is a variety of fish like rohu we are having, and many fishes we are having around the species of the fishes. Same here, it is happening. So it is what it is comical. It is a type of comical portrait, it is a comical fiction. So see here, you could see that here one boat is there, four persons are there on the boat. They are spreading the nets and they are catching fishes. So these all are, we think that these all are a fisherman, none of other than that. So what happens, let us come to the chapter. It was season for hilsa fish. Fishermen could think of nothing but hilsa fish. The season which it was running, the season was of hilsa fish. Means in the pond, in the sea, in the river, it was season when fishermen could catch hilsa species of fish. So it, and fishermen also love to catch such type of fish, means such species of fish they also love to catch. Okay, so let us coming to the next. And fishermen sold nothing but hilsa fish. Come by, the prince of hilsa is down today. Fishermongers, fishmongers means fishmongers, those person who sells the fish. Fisherman is known as fishmongers. So fishmongers whole day they were doing only one thing. What? They were selling hilsa fish. And how they were selling it? जैसे कि जब कोई सामान बेचना होता है तो लोग कैसे बोलते हैं, सेम वे दे यूज्ड टू से, आओ आओ मछलियाँ खरीदो, हम लोगों ने हिल्सा मछली के राजकुमार को पकड़ लिया है आज। हिल्सा मछली के राजकुमार को, इसको मतलब हिल्सा fish is a very good variety of fish. Householders could talk of nothing but hilsa fish. How much did you pay for that hilsa? You would not believe if I told you. और हाउस होल्डर्स, जो घर के लोग होते थे, जब वो किसी कोई जाता था हिल्सा मछली ले करके, तो जब देखते थे घर के लोग, मतलब कि घर के अगल बगल पड़ोसी नेबरहुड वाले देख लेते, अरे तुम हिल्सा मछली खरीद के लाए हो, ये हिल्सा मछली कितने में तुमने खरीदा? तो जो खरीदने वाला लाता था वो ये कहता था, अरे तुम बिलीव नहीं कर सकते कि मैं जितने पैसे में खरीद के लाया हूँ, यू कैन नॉट बिलीव। मतलब इतना पसंद होती थी लोगों को हिल्सा मछली। एंड इन द पैलेस टू द कोर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश। और यहाँ तक कि पैलेस में, राजमहल में अगर बात किया जाए तो जो कोर्टियर्स थे, यानी कि जो दरबारी थे, दे ऑल्सो लव टू टॉक अबाउट हिल्सा फिश ओनली, नथिंग अदर। इवन द कोर्ट in the courtiers, in the even though the courtiers in the palace, they used to talk, your majesty, you should have seen the huge hilsa I caught, it was। और यहाँ तक कि कुछ तो राजा से भी बात करते हैं कि महाराज आपको वो इतनी बड़ी सी जो मैंने हिल्सा मछली पकड़ी थी उसको आपको देखना चाहिए था, उतनी बड़ी सी हिल्सा मछली पकड़ी थी उसको आपको देखना पड़ा था, चाहिए था। राजा गुस्सा हो जाते हैं। सी हियर वन फेस वन आइकन इज मेड। राजा गुस्सा हो जाते हैं और कहते क्या है, स्टॉप इट, द रबिश यू ऑल आर टॉकिंग, स्टॉप इट। आर यू अ कॉटियर और अ फिशरमैन? हु द हेल आर यू? मीन्स योर प्रोफेशन, यू आर कॉटियर और योर फिशरमैन? तुम क्या हो? तुम दरबारी हो कि एक मछुआरे हो? क्या हो तुम? द courtiers fell silent with downcast eyes. The king felt guilty. I am sorry, I lost my temple. It is the season for hilsa fish and no one.
जो कॉटियर होता है वो अपनी आँखों को झुका लेता है, शांत हो जाता है और राजा को आत्मग्लानि महसूस होने लगती है, ग्लानि महसूस होने लगती है, गिल्टी फील करने लगता है। फिर राजा कहते हैं मुझे माफ़ कर देना, आई एम सॉरी, मैं अपना मतलब आपा खो बैठा या अपना टेम्पर खो लिया, ये तो मौसम ही है हिल्सा मछली का, तो कोई भी हर कोई बात करेगा हिल्सा मछली के बारे में। नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनी वन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, नॉट इवन फॉर 5 minutes। ओ आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी। यहाँ तक कि गोपाल भी किसी से दूसरे से हिल्सा मछली के बारे में बात किए बिना नहीं रह सकता, यहाँ तक कि 5 मिनट से ज़्यादा नहीं रह सकता। ओ तब वो कहता है, ओ गोपाल कहता है, ओह अच्छा मैं ऐसा बात कर सकता हूँ मैजेस्टी, देन लेट मी सी यू बाई ए ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट। आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी। देखो तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम जाओ, एक मछली हिल्सा मछली खरीद के लाओ पैलेस तक, लेकिन रास्ते में किसी से तुम कुछ बोलना मत, एक भी शब्द नहीं। और वो गोपाल कहता है यस मैजेस्टी, मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। हे महाराज, मैं ये चैलेंज जो आपका चैलेंज है, द चैलेंज विच यू आर गिविंग टू मी, आई एम एक्सेप्टिंग दिस चैलेंज, मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, मुझे एक्सेप्टेबल है ये चैलेंज। चलिए आप देखो बहुत ही अच्छा सा इसमें एक नया टर्न आ रहा है। एज यू कैन सी ना, जो मूवी में क्लाइमेक्स होता है सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी एक क्लाइमेक्स आ रहा है। यानी गोपाल चल दिया है हिल्सा मछली लाने, और हिल्सा मछली का सीज़न भी चल रहा है। हिल्सा मछली के बारे में बिना बात के कोई रह भी नहीं पाता है। हर कोई लगभग 15 मिनट 20 मिनट मतलब 5 मिनट से भी कम कोई बात नहीं कर सकता। तो सेम वे तो अब गोपाल चल दिया है। अ फ्यू डेज लेटर, वाई इज़ योर फेस हाफ शेवन, आई एम ड्रेसिंग अप टू बाई अ फिश। कुछ दिन के बाद घर पे जाता है और गोपाल अपनी आधी दाढ़ी बना लेता, आधी दाढ़ी छोड़ देता है। उसकी वाइफ पूछती है कि तुमने अपनी आधी दाढ़ी बना के रखी, आधी दाढ़ी क्यों रखी है? तो गोपाल जवाब देता है कि मैं जा रहा हूँ एक मछली खरीदने। मैं क्या खरीदने जा रहा हूँ? मछली खरीदने के लिए। व्हाट्स द मैटर विथ यू? यू आर वाई आर यू स्मेयरिंग योर सेल्फ विथ ऐश? आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाई अ हिल्सा फिश। तो ठीक है, क्या मैटर है तुम्हारे साथ? तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो अपने साथ इतने गुस्से से? मैं तुमको बता रहा हूँ, मैं जो है हिल्सा मछली खरीदने जा रहा हूँ, वहाँ जाने के लिए तैयार हो रहा हूँ, ऐसे ही जा रहा हूँ। लिसन टू मी प्लीज़, यू कॉन्ट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रैग्स। वाई आर यू अप टू? हाउ मेनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमेन, आई एम आउट टू बाई अ ह्यूज हिल्सा फिश। उसकी वाइफ रास्ते में रुकती है, कहती है रुको, तुम पॉसिबली इस तरीके से जा रहे हो, इतने गंदे तरीके से, इतने गंदे कपड़े में जा रहे हो, तुमको क्या हो गया? तुम ऐसे क्यों जा रहे हो? मैं तुमसे कितनी बार बताऊं कि मैं वहाँ पर एक बड़ी सी हिल्सा मछली खरीदने जा रहा हूँ। इट्स हैपेंस टू हिम, ही इज़ गॉन मैड। अंत में उसकी पत्नी सोचती है लगता है ये बेचारा पागल हो गया है। गोपाल bought the hilsa fish and started walking towards the palace. Mother, look at that man, isn't he comical? गोपाल एक हिल्सा मछली खरीद लेता है और पैलेस की तरफ चल देता है। और बच्चे उस मेले में बाज़ार में रहते हैं, अपनी मम्मी को दिखाते हैं, कहते हैं मम्मी देखो वो पागल हिल्स क्या हाथ में लेकर के जा रहा है, कितना पागल सा लग रहा है वो। He must be a madman. Hush, I think he is a mystic. ये एक पागल आदमी है। कुछ लोग उसी मार्केट में खड़े रहते तो एक आध लोग उसमें पागल लगता है, दूसरा कहता है नहीं नहीं कुछ तो बात है, कुछ तो बात है। When Gopal reached the court, what do you want? I want to see the king. जब गोपाल कोर्ट में पहुंचता है तो दरबारी रोकते हैं, कहते हैं तुमको क्या चाहिए? वो कहता है मैं राजा को देखना चाहता हूँ। You can't see the king. Get away with you. तुम राजा को नहीं देख सकते, अपने साथ वापस चले जाओ, यहाँ से तुरंत भाग जाओ। गोपाल बिगन टू डांस एंड सिंग लाउडली। गोपाल वहाँ पे नाचने लगता है, तेज तेज गाने लगता है।
inside the palace. The man is crazy. Throw him out at once. I want to see the king. Let me in. पैलेस के अंदर राजा बैठे रहते हैं, उनके पास तक आवाज़ जाती है, अरे ये आदमी पागल है, इसको बाहर निकाल के फेंको। और वहाँ से एक और आवाज़ सुनता है कि अरे मुझे राजा से मिलना है, मुझे राजा को मिलने दो। राजा सुनते रहते हैं। राजा बोलते हैं ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस। यस योर मैजेस्टी। उस आदमी को तुरंत मेरे पास लेकर के आओ। राजा ऑर्डर देते हैं और दरबारी कहता है हाँ महाराज, तुरंत लाते हैं। गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग। इट्स गोपाल। गोपाल को राजा के सामने लाया गया। दरबारी कहते हैं ये तो गोपाल है। द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड। आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स। ये लगता है ये आदमी पागल हो गया है। अब मुझे लगता है कि ये इसके एक कुछ मजाक होगा, कुछ मजाक कर रहा होगा, कोई जोक होगा। ऑल राइट गोपाल, आउट विथ इट। वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन। ठीक है गोपाल, मैं अब चलो कोई बात नहीं, तुम इतने गंदे तरीके से क्यों पहने हो, एकदम ख़राब फैशन में तुम क्यों कपड़ा। योर मैजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगेटन समथिंग। हे महाराज, मुझे ऐसा लगता है आप कुछ भूल गए हैं। फॉरगेटन समथिंग, कुछ भूल गया हूँ। Strangely enough, no one seems to be interested in Hilsa fish today. From the market to the palace, in the court, not a soul has spoken a word about Hilsa fish. और आश्चर्य करने वाली बात ये थी, कोई भी ज़्यादातर हिल्सा फिश में इंटरेस्टेड नहीं था। आज मार्केट से लेकर के पैलेस तक किसी ने भी कोर्ट में नहा, यहाँ तक कि एक आत्मा ने भी एक शब्द हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं किया। Only then did the king remember the challenge and he had thrown to Gopal. तब राजा को अपना चैलेंज याद आता है जो उन्होंने गोपाल से किया था, गोपाल को दिया था। हाँ, well गोपाल, congratulations, you have achieved the impossible once again. हाँ, बहुत अच्छे गोपाल, बहुत बहुत बधाइयाँ, तुमने एक बार फिर से जो इम्पॉसिबल था उसको फिर से एक बार पॉसिबल कर दिया। So my dear student, now here is the working with the text. So first of all, you have to read this chapter. Means you would be reading this chapter. You would be finding out all the words, whichever words are hard for you. You have to write down all the hard words in the doubt session. So make it sure. I would be asking here, then we would be moving to the working with the text. So you have to answer to this question. Answers in a PDF would be sent soon of the answers, but try to answer this question working with the language. And my dear student, one more thing, these all exercises which you have to do by yourself. Wherever you are facing problem, ask to me, but solve all these whichever exercises are there in your book. All these, do all these. In examination these exercises could come, so these exercises are I don't think that these exercises are nothing. You have to do these exercises. Okay, so thank you my dear student. Jai Hind once again. I would be waiting for you all. Thank you.